Assalamualaikum, respected students. Hope all of you are fine by the blessing of Almighty Allah. In continuation with the previous discussion, today I'm going to discuss one of the practical aspect of our lecture. The topic is your global segmentation, target marketing, positioning strategies. So in the last sessions, I have broadly discussed about the environmental analysis, about the micro and macro environmental factors, along with the tools for assessing the or analyzing the internal and external environment, as well as in the last session, we have broadly discussed uh, the your state of trade agreements and the role of WTO and GATT in, in forming or controlling the worldwide trade. And we have also discussed the nature and the conceptualization of regional alliances. And today, the topic is very much important, and it is the heart and soul of global marketing and your export marketing. So that is your global segmentation, target marketing, and positioning. So uh, इन मार्केटिंग बेटा हमारे यहाँ तीन स्ट्रेटजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज योर इन्वायरमेंटल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जिसे कहा जाता है. सेकंड जो होती है वो हमारी STP स्ट्रेटजी होती है जिसे हम सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग कहते हैं. एंड थर्ड जो होता है वो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी होता है. Hopefully बेटा if you have studied the the basic concept of uh, your marketing in your marketing management or marketing course, then you might have discussed uh, these important concepts more broadly, in a more broader sense. So the third is your marketing mix strategy. This is also an important strategy. So it means that we are right now at the second stage of our course, that is of your development of your global your segmentation, target marketing and positioning. जो हमारा इसके बाद सेशन होगा उसमें मैं आपसे जो है वो marketing mix strategy discuss करूँगा. So today we are going to discuss the global segmentation, target marketing and positioning. So basically, beta, these three different strategies. The तीन जो है बेटा different strategies हैं, separate strategies हैं, segmentation, targeting and positioning. लेकिन हम इन तीनों को जो है वो because these three strategies are interlinked with each other, so that's why we normally study them together with the help of a process, and that process is known as segmentation, targeting and positioning process. So basically ये तीन different strategies हैं, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये एक दूसरे से इंटरलेटेड है, तो इन तीनों को जो है वो हम एक प्रोसेस के जरिए जो है वो जॉइंटली स्टडी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी जॉइंटली की जाती है. बेसिकली ये तीन डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं. सो लेट मी डिस्कस each of the strategy one by one. The first strategy is market segmentation. Market segmentation is the process of dividing the market into different units. So in market segmentation strategy, we divide our target market into different units. And why a company go for the market segmentation? That is just because to properly understand or properly comprehend the needs and wants of the customers. So basically, the customer needs and wants are heterogeneous in nature. So company cannot satisfy uh, with or deal with the heterogeneity of the needs and wants of the customer. So that's why they first of all wanted to know about the homogeneity uh, in their target market. So that's why they divide their market into different units in order to study the nature and the intensity of the customers' preferences, their response and their needs and wants. ठीक है बेटा. सेगमेंटेशन में जस्ट हम डिवाइड करते हैं अपनी टारगेट मार्केट को इनको डिफरेंट यूनिट्स में, इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं.
टारगेटिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है, टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ selecting or targeting the appropriate segment or segments. So in targeting, we basically select the best appropriate segment or segments from amongst the various segments. सेगमेंटेशन में बेटा हम टारगेटिंग में क्या करते हैं, सेगमेंटेशन में जो जब हम सेगमेंटेशन में जब हम डिवाइड करते हैं अपनी मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स या यूनिट्स में, टारगेटिंग स्ट्रेटजी में उनमें से वन या मोर देन वन सेगमेंट्स को जो अप्रोप्रिएट होते हैं हम टारगेट करते हैं, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड स्ट्रेटजी इज द पोजिशनिंग। पोजिशनिंग is basically the development of the strong uh, impressions, perceptions, feelings, or attitude about the company's offering in the target markets. So in positioning, company try to establish the strong impressions, goodwills, feelings of their product in the mind of the target markets. पोजिशनिंग में हम जो है वो अपनी एक जो है वो जो टारगेट मार्केट है उनकी नज़र में अपनी प्रोडक्ट की जो है वो एक पोजिशनिंग टाइम करते हैं। तो बेटा ये तीन डिफरेंट स्ट्रेटजी है जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, लेकिन हम इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम STP प्रोसेस कहते हैं। होपफुली यू माइट हैव अंडरस्टैंड द अंडरलाइन differences and the basic ideologies of the segmentation, targeting, and positioning strategy. So let me discuss all of them one by one. Global market segmentation. What is that? As I already mentioned, that it is the process of dividing the world market into distinct subset of customers that have similar needs, for example, country groups or individual interest groups. It is a process of dividing the global world market into distinct subset of customers who share the similar needs and wants. तो सेगमेंटेशन में हम बेटा अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं उन ग्रुप्स में जहाँ के लोग एक दूसरे से मिलती जुलती नीड्स और वांट्स शेयर करते हैं। इसमें बेटा आप कंट्री में ग्रुप्स भी बना सकते हैं या इंडिविजुअल इंटरेस्ट ग्रुप्स की बेस पे भी कर सकते हैं। इसके किसी भी कंट्री में आपके जो कंट्री में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, यानी वो पॉलिटिकल बेसिस पे भी हो सकते हैं, वो जोग्राफिकल बेसिस पे भी हो सकते हैं, वो डेमोग्राफिकल बेसिस पे भी हो सकते हैं, वो एथनिसिटी की बेस पे भी हो सकते हैं, वो कल्चर की बेस पे भी हो सकते हैं जो कंट्री में होते हैं। इसके अलावा बेटा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं। डेफिनेटली हर बंदा है वो उसका एक सोशल बिलोंगिंग एक अपना ग्रुप होता है। जैसे आप हैं, एक आपका फॉर्मल ग्रुप होता है जिसका आप हिस्सा होते हैं। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब्स में आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके फेलोज हैं, और डेफिनेटली वो भी आपका एक ग्रुप होता है, ठीक है। एक आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं बेटा जो आपके दोस्त बडीज यार दोस्त अहबाब है उनमें। तो आप यानी किसी भी बेस पे आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। Pluralization of consumption or segment simultaneously theory was advanced by Professor George Levitt 4 decades ago, stating that consumers seek variety and new segments will appear in many national markets. So this is one of the most famous theory that was established by Mr. George Levitt. The famous theory developed by Mr. George Levitt almost 4 decades ago, and in this particular theory, he stated that with the passage of time, people they start learning about the environment, they start learning about the market potential, and they might be able to understand the substitutes which are available in the market. So with the passage of time, customer knowledge जो है वो इनहांस होना शुरू हो जाता है, और जब आप कस्टमर का नॉलेज इनहांस होता है तो डेफिनेटली आपकी जो है वो कंज्यूमर जो है वो वैरायटी की तरफ माइल होता जा रहा होता है, और इसके
साथ ही न्यू सेगमेंट्स जो है वो न्यू सेगमेंट्स विल गोइंग टू बी अराइव, ठीक है। And in many national markets, just like in our country, we have just witnessed the popularity of Thai foods, pizza, etc. and etc. So these are the things which are basically, so according to the third level, with the passage of time, consumers seek variety, and new segments will appear in many national markets. Just like as I already mentioned, in Pakistan, you might have observed the popularity of Thai foods, pizza, and the Dakkans, and the, the फूड्स लाइक दैट। इसके अलावा आपने जो ऑब्जर्व किया होगा हमारे यहाँ बेरिंग में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो वैरायटी आ चुकी है। आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज आ चुकी हैं। सो जैसे मीन्स के पैसे ऑफ टाइम आपके कंज्यूमर वैरायटी सीकर होता है, तो उस न्यू मार्केट्स भी यानी न्यू बिजनेस भी जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाता है। Okay, beta. Uh, these are the type of segmentation methods, beta. Global market में जैसे मैंने आपसे पहले कहा, the segmentation is basically a strategy of dividing the market into different units. So global markets can be divided into different units based on these four methods. इन फोर मेथड्स को जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो ग्लोबल मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। नंबर वन इज डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन, second is psychographic segmentation, then behavioral segmentation, and fourth one is your benefit segmentation. Fifth we have it जो कि इधर mention की उसे हम कहते हैं umbrella segmentation. Umbrella segmentation is basically a combination of two or more than two ways of segmentation. ठीक है, अभी मैं जो है सबको आपसे डिस्कस करूँगा। Number one is better geographical segmentation. Geographical segmentation is one of the most popular form of global market segmentation. In geographical segmentation, we divide the world into geographical subgroups, just like in subcontinents. Uh, uh, so, geographically, world is divided into different continents or subcontinents, and these continents definitely every continent is based on certain uh, countries, and every country is based on certain uh, uh, further division, like in the form of provinces, states, divisions, districts, towns, so on and so on. So in geographical segmentation, we divide the market into different units based on geographical elements. Okay, beta. So this is one of the most popular form of global market segmentation, in which we divide the market into different units based on geographical subgroups. The advantage of geography is the proximity. So the people who are representing the regions, they have the proximity or similarity in their needs, wants, or demands. So you might observe some sort of proximity amongst the geographical groups or subgroups. Just like बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जितनी कंट्रीज होंगी, वहाँ के जितने भी मीन्स उन कंट्रीज में रहने वाले हैं, उनकी तकरीबन मिलती जुलती जो है वो रवायात होंगी, उनकी नीड्स एंड वांट्स भी एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। इसी तरह हम देखें एशियन कंट्रीज हैं, इसमें भी जो लोग हैं उनकी तकरीबन सेम मिलती जुलती जो है वो नीड्स वांट्स, इवन फूड है आपका, आपके रस्म रिवाज है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी तरह बेटा क्योंकि मैं मलेशिया में काफ़ी टाइम गुजारा, तो मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, इसके अलावा आपका इससे नेबरिंग जो है वो कंट्रीज हो गई वियतनाम, अब तकरीबन तमाम की जो है वो सिमिलर उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, तकरीबन लोगों की मिलती जुलती है। So it's a proximity, as I was already mentioning. Similarly, in Pakistan and Asian countries, they have a similar almost taste. They have similar needs or wants. इसी तरह बेटा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके यूरोप में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो प्रॉक्सिमिटी पाई जाती है।
However, just because people are in close proximity does not mean they are similar. ये ये नहीं है कि अगर लोग एक दूसरे के करीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि टोटली जो है वो उनकी नेचर ना सिमिलर हो, कुछ डिफ्रेंसिएशन भी पाई जा सकती है। यानी कहीं ना कोई तमीज़, जैसे सपोज करें खाने फूड की बात करें तो हमारा तकरीबन सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन देखा जाए सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो पाकिस्तान में डेफिनेटली इस्लामिक डोमिनेंट है, हलाल फूड और ये सारी चीज़ें मतलब वो रखी जाएगी। कुकिंग का वे डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैं मलेशिया में था तो चपाती जो है ना नाम एक वर्ड होता था, रोटी चनाए जो है वो एक ये भी मिलती थी। क्योंकि जो हम तंदूर की रोटी खाते हैं हार्डली पाकिस्तानी ही वहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ से मिलती थी। सिर्फ ये रोटी की बात कर रहा हूँ आपको। तो वहाँ वाले जो है वो मलेशियन जो है वो इतना ज़्यादा चपाती रोटी वगैरह नहीं खाते, वो ज़्यादातर राइस खाते हैं। या फिर वो जो है वो खमीस होती है, उनकी एक स्पेशल रोटी है जो स्पेशली अरब एमिरेट्स में भी खाए जाते हैं, तो ज़्यादातर वो खाते हैं। लेकिन इसके बरक्स देखिए हम लोग एशियन है, हम लोग जो है वो रोटी खाते हैं। तो वहाँ रोटी की भी इकसाम है बेटा। यानी एक को चपाती कहते थे, चपाती जो है वो पतली, जो जैसे हम ये सुबह नाश्ते के वक्त जो है वो ये स्लिम सी जो रोटी होती है जो पकाई जाती है तवे पे। इसके बाद एक रोटी चनाए होती थी, चनाए रोटी है कि ये जैसे हम लोग पूरी खाते हैं, हलवा पूरी है इसी तरह की वो जो चपाती बनाते थे उसे रोटी चनाए कहा जाता था। तो सिमिलरली ये तंदूर की जैसे हमारे यहाँ, ये वहाँ रोटी नहीं होती, ये तो पाकिस्तानी है। तो ये सिर्फ एक बात बता रहा हूँ बेटा, ये नहीं मीन्स के वीट गंदम में इस्तेमाल हो रहा है या मैदा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लेकिन फ़र्क है, ठीक है। तो ये बेटा सिर्फ ब्रेड की बात कर रहा हूँ कि सिमिलर होने का मतलब ये नहीं कि लोगों की नीड्स एंड वांट्स भी सिमिलर होंगी। हमारे यहाँ डेफिनेटली हम एक एग्रेरियन बेस्ड कंट्री है, तो हमारे यहाँ जो हमारी बेसिक नीड है वो हमेशा गंदम होती है, वीट होती है। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आती है। हर बंदा जो है वो एवरेज जो है वो 6 से 7 रोटियां तो डेली खाता ही है। अगर आप चलेंगे यूरोप में तो डेफिनेटली वहाँ ये मीन्स के आपको हार्डली वो रोटी मिलेगी। डेफिनेटली वो ज़्यादातर ब्रेड्स बटर पर फोकस करते हैं। तो आपको भी चाहते ना चाहते वो चीज़ खानी पड़ेगी, आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कितने अरसे तक आप वहाँ। तो ये बेटा कहता कहा जाता है जोग्राफिकल सेगमेंटेशन में हम डिवाइड करते हैं मार्केट को डिफरेंट यूनिट्स पे। अगर मैं वर्ल्ड वाइड कहूँ तो बेटा बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली नीड्स एंड नॉर्म्स डिफरेंट हैं। आप एक कंट्री की बात समझ लें तो हमारे मुल्क में देख लेंगे आपकी डिवीजन है कि आपके सिंध पंजाब बलूचिस्तान के पी के तो ये सारे, अब हर की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, डिफरेंट नीड्स एंड नॉर्म्स है। मैं जस्ट एक खाने की बात करूँ कि आप पुलाव की बात करें बेटा, ये यानी बिरयानी कराची जाए तो बिरयानी बिरयानी उनकी डिफरेंट होगी। इफ यू मूव टुवर्ड्स द पंजाब वहाँ बिरयानी कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। अगर आप चले जाएंगे कि नॉर्दर्न एरियाज की तरफ तो वहाँ बिरयानी या ये पुलाव का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। वो बीच में उन्होंने अफगानी पुलाव या इस तरीके से जो है वो बनाया होगा। तो ये बेटा देखें चीज़ एक ही है, राइस ही है, लेकिन उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये क्या जी, ये रिफ्लेक्ट करती है कि लोगों की जो है वो नीड्स वांट्स डिफरेंस है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंस है। इसी तरह वेयरिंग है, आपके कपड़े हैं मलबूस आते हैं, ये भी जोग्राफिकली डिफरेंट होते हैं। आपका वे ऑफ लिविंग डिफरेंट होगा, वे ऑफ स्पेंडिंग स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट होगा, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होगा। तो ये जोग्राफिकल सेगमेंटेशन है जिसमें आप डिवाइड करते हो वर्ल्ड को डिफरेंट सब ग्रुप्स में। Second is your demographical segmentation. In demographical segmentation, you divides the market into different units based on the demographical variables or characteristics like age, income, gender, age, distribution, education, occupation. So, what is a demography? That a demography is the study of human population. Okay, it's the study of human population in terms of measurable population characteristics like your age, income, gender, age distribution, education, occupation. Generally, national income is the most important variable if we will uh, consider the demographic segmentation in the global market. Then, income is one of the most dominant variable of demographical factors. So, देखा जाए बेटा हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो भी एज, इनकम, जेंडर और
वाइज जो है वो डिफरेंट होती है, एजुकेशन वाइज भी डिफरेंट होती है, ऑक्यूपेशन वाइज भी डिफरेंट होती है। तो डेमोग्राफिकल डेफिनेटली अफेक्ट करती है हमारी जो है वो हमारी से मार्च को। कहा जाता है 50 मिलियन एशियन कंज्यूमर मीन्स के वो एज 16 एंड यंगर बेटा आपके 50 मिलियन 500 मिलियन सॉरी जो है वो एशियन कंज्यूमर जो है वो यूथ पर मुबनी है। If we will consider India and Pakistan have the youngest demographical profile amongst the world's large nations, half are younger than 25, 14 years olds and younger equal the entire US population बता दें। यानी आपकी जो यूथ है वो आपकी उसके यूएस पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, ये यूएस पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो जो जो कंपनीज या फर्म जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो अपने अगर प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है तो डेफिनेटली यूथ को वो लाजमी मद्देनजर रखेगी, क्योंकि हमारी जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है वो यूथ पर मबनी है, जो यूएस की ओवरऑल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। सो हाफ ऑफ जापानीज विल बी ऑफ 50+ ईयर्स बाय 2025 बेटा 2025 में आपकी 50% से ज़्यादा जो है वो जापान की पॉपुलेशन जो है वो 50+ लोगों पर होगी। तो डेफिनेटली जो कंपनी जो है वो जापान में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, ऑपरेशन करना चाहेंगी, एक्सपोर्ट करना चाहेंगी, तो वो इस पॉपुलेशन को मद्देनजर रखेंगी। 20% ऑफ अमेरिकन means 70 million will be of 65 plus age by 2030. You have ethnic group African, Black, Hispanic, and Asian Americans have combined annual buying power of 233 बिलियन US डॉलर बेटा। तो ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन की अहमियत को जो है वो मजीद हाईलाइट करते हैं। तो डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन डेफिनेटली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वे है ऑफ डिवाइडिंग योर मार्केट इन डिफरेंट यूनिट्स। जैसे मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट में कहा कि आपकी जो डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन में सबसे जो पॉपुलर है वो आपकी इनकम एंड पॉपुलेशन सेगमेंटेशन है। कहा जाता है 2/3 वर्ल्ड ग्रॉस नेशनल इनकम इन द ट्राइड इसके 12% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आपकी जो है वो मीन्स के पाई जाती है। डोंट यूज इनकम एज द ओनली वेरिएबल फॉर असेसिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी बेटा। इनकम ही जो है वो पैरामीटर्स नहीं हो सकता, इसके अलावा भी जो है वो दूसरे पैरामीटर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक यूर परचेसिंग पावर पैरिटी, लोगों की परचेसिंग पावर को भी देखना पड़ता है कि परचेसिंग पावर पैरिटीज क्या है। सिमिलरली डू नॉट रीड इनटू द नंबर्स, इसके आप नंबर ऑफ पॉपुलेशन की तरफ ना जाएं कि जिस मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो उस मुल्क वो मुल्क आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो बाद में बेटा पॉपुलेशन जो है वो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो है वो रिगुलेट कर देती है, अफेक्ट करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है। सम सर्विसेज आर फ्री इन डेवलपिंग नेशंस, तो देयर इज मोर परचेसिंग पावर। कुछ बेटा सर्विसेज फ्री होती है डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन क्योंकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं या उनमें जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना जो है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तमाम को सिमिलर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो है वो टफ होता है। इस वजह से जो है वो सेम नंबर्स में नहीं दी जा सकती। फॉर प्रोडक्ट्स विद लो इनफ प्राइस पॉपुलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल। जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स होती है बेटा उनके लिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर कम होगी। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस लो है तो वो डेफिनेटली उसमें आप उस मुल्क में ही जाओगे जहाँ so, so as I already mentioned that don't use income as the only variable for assessing the market opportunity. We can also use the purchasing power parity, and we can also don't read into the numbers, because larger population doesn't reflect the larger opportunity for the company, for the firms. Uh, for the products with low enough price, I already mentioned population is lower is a more important variable, just like Pakistan. So market segments by income and population. If we will look at the global teens, then 12 and 19 years olds, basically it is a group of
teenagers randomly chosen from different parts of the world will share many of the same tastes बेटा ये जो है वो ग्लोबल टीम्स को जो है वो एक सर्वे किया गया जिसमें 12 से 19 साल के लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया गया और देखा गया एक जो है वो ग्लोबल टीम्स ग्रुप बनाया गया और सरप्राइजिंगली जो मेजॉरिटी ऑफ जो आपके टीनेजर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनकी तकरीबन सेम टेस्ट था इसी तरह ग्लोबल एलीट है बेटा एफिलिएंट कंज्यूमर्स हु आर वेल ट्रेवल्ड एंड हैव द मनी टू स्पेंड ऑन प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट विद एन इमेज ऑफ एक्सक्लूसिविटी तो एलीट ग्लोबल एलीट वो लोग होते हैं जिनकी जो है वो हैंडसम जो है वो स्पेंडिंग पैटर्न स्पेंडिंग परचेजिंग या परचेजिंग पावर होती है और वो जो है वो ज़्यादातर जो है वो प्रेस्टिजियस गुड्स को जो है वो परचेज करने पे स्पेंड करते हैं ये ग्लोबल एलीट जो है वो आपको ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज में ही मिलते हैं वो लोग होते हैं जो वो ज़्यादातर जो है वो जिनके पास एनफ मनी होती है इसके बाद आपकी सेकंड जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की है वो हमारी जेंडर सेगमेंटेशन है जेंडर सेगमेंटेशन इज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर सम कंपनीज बट डेफिनेटली आपकी जो नीड्स है मार्क्स है वो जेंडर की बेस पर भी होती है मेल और फीमेल्स की जो है प्रोडक्ट डेफिनेटली डिफरेंट होती है फैशन डिजाइनर्स एंड कॉस्मेटिक कंपनीज फोकस ऑन वुमेन बट they also offer men's products just like अभी फेयर एंड लवली मैन भी है भाई ठीक है अब आपके लिए सरप्राइजिंग शॉकिंग जो है फैक्ट होगा कि इवन कुछ कंट्रीज हैं वहाँ जो है वो कॉस्मेटिक्स जो है वो मेन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फीमेल से यूरोप में कहा जाता है कि इसके कॉस्मेटिक्स जो है वो मेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू द फीमेल सिमिलरली इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी जो है वो इसके सेम प्रोपोर्शन है तो कंपनीज को जो है वो फोकस करना पड़ता है दोनों जेंडर्स को इक्वली देखना पड़ता है and Nike is opening shops for the women. Similarly, Levi Strauss opened Levi's for girls in the Paris because आपके सामने इसमें जेंडर सेग्रीगेशन हमारे दिल्ली में भी इसके इसमें जो जेंडर की जो प्रपोर्शन देखा जाए तो फीमेल्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन में तो भी आपने देखा होगा इवन जो है वो शी शॉप्स और ये भी बहुत ज़्यादा है इवन आपकी जो हेयर ड्रेसर हो गया हेयर कटिंग हो गया आपकी ज्वेलरिंग हो गया इसके अलावा आप ग्रॉसरी स्टोर्स है वो भी फीमेल्स इसके ऑपरेट कर रही है इसके अलावा आपके कॉस्मेटिक्स तो ऑलरेडी स्टोर्स आपको नज़र आ रहे होंगे तो ये बेटा जेंडर सेगमेंटेशन है जहाँ आपकी जो है वो जो भी डोमिनेटिंग होगी वो आप उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो you will move towards that particular gender. And next is your psychographical segmentation. In psychographical segmentation, psychographic segmentation is the next form of segmentation. In psychographical segmentation, we divide the market into different units based on certain psychographical elements, just like on the basis of uh, people's perceptions, their attitudes, their values, and lifestyle. So in psychographical segmentation, we divide the market into different units based on certain psychographical elements, just like your perceptions, learning, beliefs, attitudes, values, and lifestyle. So, uh, in order to assess the people's lifestyle, certain lifestyle surveys are basically conducted in various parts of the world so that we can comprehend the lifestyle of the people. So one of the famous the survey is your SRI International's value of lifestyles बेटा जिसको हम वॉल्स एंड वॉल्स टू का नाम देते हैं सो वॉल्स एंड वॉल्स टू में जो है वो डिफरेंट जो है वो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं और इन ग्रुप्स में जो है वो लोगों की जो है वो साइकोग्राफिकल की बेसिस पे जो है वो सेगमेंटेशन की हुई है इनमें से कुछ ग्रुप्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे स्लाइड में नंबर वन इस आपका टॉप गन्स हैं जो कि 27% ऑफ द पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाए गए इसी तरह आपके इलिस्ट्रेट्स होते हैं जो एलीट क्लास के लोग होंगे ठीक है प्राउड जो है वो पैट्रन्स होते हैं ये 23% होते हैं बॉर्न विमेंस 17% होते हैं और आपके फंटेस्टिक्स जो है वो 9% होते हैं ये आपके वाल्स ग्रुप में
ये डिवीजन है जो कि नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसे कि टॉप गन्स हैं जो कि 27% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं, इनमें से जो लोग होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं ये बड़ा एम्बिशियस होते हैं, पावर एंड कंट्रोल चाहते हैं, एम्बिशियन माइंडेड होते हैं। और इसके बाद इलिस्ट्रेट्स होते हैं, ये 24% ऑफ द पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये इसमें ओल्ड मनी कार इज जस्ट अ कार फॉर देम, ठीक है बेटा। एंड प्राउड पैटर्न्स जो होंगे ये 23% होंगे। एंड कार इज रिवार्ड फॉर हार्ड वर्क, इनके लिए जो है वो कार जो है वो इनका रिवार्ड होगा अगेंस्ट देयर हार्ड वर्क। इसके बाद आपके बॉर्न विमेंस होते हैं, 17% ऑफ द पॉपुलेशन होंगे। इनके लिए जो है वो कार इज फॉर द एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर होगी, कार जो होगी इनके लिए सोर्स ऑफ एडवेंचर और एक्साइटमेंट होगी। एंड आपके लास्ट है बेटा जो है वो जो फैंटेसीज होते, कार इज फॉर्म ऑफ एस्केप बेटा, इनके लिए जो है वो फॉर्म ऑफ एस्केप होगी। तो ये आपके इस को उन्होंने डिवाइड किया वॉल्स एंड वॉल्स टू को। तो वॉल्स है बेटा ये बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड जो है वो उन्होंने लोगों की साइकोग्राफिक्स को मद्देनजर रखते हुए मीन्स के पैटर्न जो है वो इस्टेब्लिश किया। और इन पैटर्न्स को जो है वो मद्देनजर रख के जो है वो उन्होंने मीन्स के असेस करने की कोशिश की है कि लोगों में वर्ल्ड वाइड जो है वो उनकी साइकोग्राफिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइंड क्या है, ठीक है बेटा। वाल्स टू है ये एक्सटेंशन ऑफ योर वाल्स होता है। इसके बाद आपकी बिहेवियर सेगमेंटेशन है जो लास्ट हमारी फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन है। इन बिहेवियर सेगमेंटेशन वी डिवाइड्स द मार्केट इनटू डिफरेंट यूनिट्स बेस्ड ऑन द बिहेवियरल dimensions, just like we focus on whether people purchase a product not or product or not, how much and how often they use it, ठीक है बेटा। हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अगर करते हैं तो कितनी, और उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ परचेज या परचेज फ्रिक्वेंसी यूजर क्या होता है। तो बिहेवियर सेगमेंटेशन में हमारी जो फर्स्ट फेज जो बेस होती है उसको हम कहते हैं यूजर स्टेटस। यूजर्स, आपका जो यूजर होता है उसका स्टेटस क्या है। आपका लॉयल कस्टमर्स है मीन्स के, आपका जो है वो रेगुलर कस्टमर्स है, आपका फ्रीक्वेंट बायर है, आपका मीन्स के लेस फ्रीक्वेंट बायर है, आपके ओकेजनल बायर्स हैं। तो उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस बेटा आपकी वॉल्यूम ऑफ परचेज से भी रिप्रेजेंट होता है कि आप मीन्स के हैवी यूज़र हैं, आप जो है वो कैजुअल यूज़र्स हैं, या फिर आप मीडियम यूज़र्स हैं। तो यूज़र स्टेटस भी बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है आपकी जो है वो परचेजिंग कैपेसिटी को। 80-20 80 20 है बेटा, 82 रूल है वैसे। 80-20 रूल ऑफ लॉ ऑफ डिसप्रोपोर्शनैलिटी और पैरेटोस लॉ, वो कहता है कि बेटा 80% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू आर अकाउंटेड फॉर बाय 20% ऑफ द कस्टमर्स बेटा। और 80-20 जो है वो आपका रूल ऑफ जो है वो डिसप्रोपोर्शनैलिटी और पैरेटोस लॉ जो है वो हमारे यहाँ जो है वो इस बिहेवियर सेगमेंटेशन में अप्लाई होता है। पैरेटोस लॉ या लॉ ऑफ डिसप्रोपोर्शनैलिटी कहता है कि जो 80% ऑफ द रेवेन्यू जो होता है कंपनी का वो जस्ट अर्न फ्रॉम द 20% ऑफ द कस्टमर। जो कंपनी जो है वो अपना 80% ऑफ द रेवेन्यू है वो 20% ऑफ द कस्टमर से जो है वो जनरेट करती है। रेस्ट ऑफ जो 80% ऑफ कस्टमर है वो जस्ट 20% रेवेन्यू का बायस करते हैं। तो कंपनी को जो है वो नॉर्मली फोकस करना पड़ता है, ये जो आपके 20% ऑफ द कस्टमर जो उनके लिए एलीट होते हैं। इसके लिए आपने बेटा पढ़ा भी होगा, एक हम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में जिसे हम कहते हैं कस्टमर पैरामिड। कस्टमर पैरामिड में कंपनी क्या करती है, कस्टमर्स को जो है वो डिवाइड करती है मीन्स के पैरामिड में। जैसे इन द फॉर्म ऑफ मीन्स के आपके टाइम आपके प्लाटीनियम, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स। प्लाटीनियम बेटा वो कस्टमर होते हैं जो तादाद में कम होते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल ज़्यादा होते हैं। इसके बाद गोल्ड आ जाते हैं। गोल्ड प्लेटिनियम की निस्बत तादाद में ज़्यादा होते हैं लेकिन कम प्रॉफिटेबल होते हैं। सिल्वर जो है वो गोल्ड की निस्बत जो है वो तादाद में ज़्यादा होंगे लेकिन गोल्ड की निस्बत कम प्रॉफिटेबल होंगे। और उसके बाद आते हैं मेटल्स और आयरन। ये वो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं लेकिन सबसे कम प्रॉफिटेबल होते हैं। तो कंपनी जो है वो कस्टमर को इम्पोर्टेंस उनकी जो स्टेटस है उस हिसाब से भी देती है।
कि आप प्लाटीनियम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे गोल्ड से, ठीक है। इसी तरह गोल्ड है उसको इम्पोर्टेंस सिल्वर से ज़्यादा दी जाएगी, सिल्वर को इम्पोर्टेंस जो है वो मेटल से ज़्यादा दी जाएगी। तो यूज़र स्टेटस बेटा बिहेवियर सेगमेंटेशन जो है वो इसी तरह बेटा बिहेवियर सेगमेंटेशन की एक और टाइप है, उन्हें हम कहते हैं बेनिफिट सेगमेंटेशन। बेनिफिट सेगमेंटेशन फोकस ऑन द वैल्यू इक्वेशन बेटा। डेफिनेटली जो कस्टमर्स की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू वो मीन्स के प्राइस और बेनिफिट की कंपैरिजन से आपको मालूम होती है कि किसी भी चीज़ की अगर आपने वैल्यू मालूम करनी हो तो आप जो है वो ट्रेड ऑफ मीन्स के कैलकुलेट करते हो बिटवीन प्राइस एंड बेनिफिट्स। इफ यू आर getting the price, if you are getting the benefits equal to your prices, then definitely you will be satisfied. And if you will get the more benefits than that of your prices, then you will be delighted. And if you are getting the less benefits than that of the price, then this product will not be valuable for you. So more valuable products are those products in which you get more benefits than that of the prices, or you will get the benefits parallel to your the prices you have to pay. So based on the understanding the problem a product solve, the benefit it offers or the issue it address बेटा इसमें जो benefit segmentation में हम इन issues को जो है वो address कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारी होती है बेटा एथनिक सेगमेंटेशन, ये भी आपकी उसी की ही एक टाइप है। द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इंक्लूड्स एथनिक ग्रुप ऑफ सिग्निफिकेंट साइज। यहाँ अमेरिका की बात की गई है, तीन जो ग्रुप्स जो है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक अमेरिकन बेटा। हिस्पैनिक अमेरिकन जो है वो नॉर्मली 50 मिलियन हिस्पैनिक अमेरिकन हैं जो 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अमेरिका की, विद 978 बिलियन यूएस डॉलर एनुअल बाइंग पावर होती है। इनका 1 ट्रिलियन लाटीनियन है, इनमें 24 मिलियन जो है हिस्पैनिक वुमेन्स हैं एंड 42% उनमें से सिंगल हैं, और 35% जो है वो हाउस होल्ड है और 54% जो है वो उनके वर्किंग है। तो आपके एथनिक सेगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। हमारे मुल्क में भी बेटा जो है वो एथनिक ग्रुप्स हैं पड़े, लेकिन इतना ज़्यादा वो मीन्स कि इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं कितना जो अमेरिका या दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में है। हमारे यहाँ जो एथनिसिटी है वो रिलीजन्स की बेस पर है पड़ी, लेकिन वो इतना ज़्यादा हमने उन चीज़ों को इतना डोमिनेट नहीं किया जितना कि अमेरिकन या डेवलप्ड कंट्रीज में है पड़ा। तो जब बेटा आप मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो असेस करोगे मार्केट पोटेंशियल को। बी माइंडफुल ऑफ द पिटफॉल्स बेटा, आपको असेसमेंट करने से पहले आपको ये पिटफॉल्स को मद्देनजर रखना है। नंबर वन, टेंडेंसी टू ओवरस्टेट द साइज एंड शॉर्ट टर्म अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल कंट्री मार्केट्स बेटा। आप कभी भी आप ओवरस्टेट ना करें अपनी पॉपुलेशन के साइज को, और शॉर्ट टर्म अट्रैक्टिवनेस पर की बजाय लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस पर फोकस करें कि हो सकता है कि इन अ शॉर्ट रन वो पर्टिकुलर कंट्री आपके लिए आपकी फर्म के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो। द कंपनी डज नॉट वांट टू मिस आउट ऑन अ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली हमें अपनी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। Management आपकी networks of contacts will emerge as primary criterion for targeting data। डेफिनेटली आपका जो नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप पोटेंशियल देख रहे हैं। तो बेटा असेसिंग मार्केट पोटेंशियल, तीन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए हम असेस करते हैं मार्केट पोटेंशियल को। नंबर वन इज करंट साइज ऑफ सेगमेंट एंड एंटिसिपेटेड ग्रोथ पोटेंशियल बेटा। करंट साइज मार्केट का क्या है और उसमें फर्दर ग्रोथ के चांसेस हैं या नहीं है। सेकंड क्राइटेरिया पोटेंशियल कंपटीशन, वन नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है, कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंपेटिटर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स क्या है। जितने ज़्यादा होंगे आपके पोटेंशियल कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा उतने ही आपके लिए वो मार्केट जो है वो मीन्स के कम अट्रैक्टिव होगी। Similarly, compatibility with the company's overall objectives and the feasibility of successfully reaching the target audience. Definitely, whenever you are going to assess the market potential, then you must also keep in mind the compatibility of that particular segment with your company's overall objectives and feasibility of your successfully reaching the target audience.
Then comes beta criteria for बेटा असेसमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल के फौरन बाद बेटा आप जो है वो टारगेटिंग करोगे। और टारगेटिंग करने के लिए टारगेट मार्केटिंग सेलेक्ट करने के लिए बेटा ये क्राइटेरियाज हैं जो कि आप मद्देनजर रखते हो, जो कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपका करंट साइज ऑफ द सेगमेंट एंड ग्रोथ पोटेंशियल, पोटेंशियल कंपटीशन और कंपेटेबिलिटी एंड फैसिलिटी बेटा। इसके बाद आप जो सेकंड चीज़ जो बेटा इसमें मद्देनजर रखोगे आपकी, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, आपकी जो पहली चीज़ क्राइटेरिया फॉर टारगेटिंग आपकी करंट आपका सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ है। जब भी आप टारगेट मार्केट सेलेक्ट करोगे तो पहली चीज़, पहला क्राइटेरिया टारगेट मार्केट सेलेक्ट करने के लिए मद्देनजर रखोगे वो आपका करंट सेगमेंट साइज एंड ग्रोथ है। इसमें बेटा आपने देखना इज द मार्केट सेगमेंट currently large enough to present a company with the opportunity to make a profit or not. Secondly, if the answer is no, does it have significant growth potential to make it attractive in terms of a company's long-term strategy? तो साइज देखें कि करंटली अगर मीन्स के उस सेगमेंट का साइज अगर बहुत ज़्यादा है, क्या उस सेगमेंट को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? अगर नहीं, तो क्या ये फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं? सेकंड चीज़ बेटा जो आपने देखनी है वो आपका पोटेंशियल कंपटीशन है आपका। तो कहा जाता है ओनली 1% ऑफ चाइनीज है क्रेडिट कार्ड, सिर्फ देखने की लेस देन 1% जो है वो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं चाइना में। एंड बहुत सारी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये किसी दिन आगे जाके आपको बताऊंगा क्यों यूज़ करते हैं। इसमें बेटा जो आपने द फर्स्ट थिंग दैट यू कीप इन माइंड दैट uh, is there currently strong competition in the market segment? क्या आपके currently मीन्स के strong competitors हैं मार्केट में, या आपके नेचर ऑफ जो आपके competitors या rivals हैं वो इतने ज़्यादा strong नहीं है? Is the competition vulnerable in terms of price or quality? क्या आपका कंपटीशन जो है वो वर्नरेबल है, यानी जो कंपटीशन है वो प्राइस और क्वालिटी की बेस पर है, क्या हम हिट कर सकते हैं अपने कमेंटर्स को बेस्ड ऑन द प्राइस एंड क्वालिटी? थर्ड चीज़ बेटा जो आपने देखनी है क्राइटेरिया है जो आपका है जी विजिबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी। विल अडॉप्शन बी रिक्वायर्ड? इफ सो, इज दिस इकोनॉमिकली justifiable in terms of expected sales? Then feasibility and compatibility, will adoption be required? If so, is the economically justifiable in terms of expected scales or not? Will import restrictions, high tariffs, or a strong home country currency drive up the price of the product in the target market currency and effectively deepen your demands? So these are the things that will actually address the feasibility and the compatibility. So here comes the framework for selecting the target markets. Then data. This is the framework that company should keep in mind while selecting the target markets in the global or international market. First of all, they will have to identify that what are the key drivers of these marketing models that we are going to apply in that particular market. Then are enabling condition in place for these particular marketing models. So then uh, uh, we will have to analyze the conditions, or we will have to conduct the market environment analysis, which we have already discussed in the previous topic. Then what is the cost of entry? आपको इस पर्टिकुलर मार्केट में आपको एंट्री कॉस्ट क्या बेयर करनी पड़ेगी? एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वेटिंग of for waiting in order to enter into that particular market? And is the risk control trade off appropriate or not? क्या आपका रिस्क और कंट्रोल ट्रेड ऑफ अप्रोप्रिएट है या नहीं है? So apart from this beta, these are the 9 questions for creating a product market profile. ये 9 क्वेश्चन है जो कि आप मद्देनजर रखोगे प्रोडक्ट मार्केट प्रोफाइल को in order to enter into the global or international market. Who buys our products, who does not buy it,
What need or function does it serve? Is there a market need that is not being met by current product or brand offering? What problem does our product solve? What are the customers buying to satisfy the needs for which our product is targeted? What price are they paying and when the product purchased as well as where it's being purchased? So these are the questions that actually help us you to create a product market profile for your uh, then comes these are the product market decisions that you will also took in order for your best target market selection. You will have to review current and potential products for best match for the country markets or the segments. You will review your current products and you will in order to match your product's potential with the various country markets or the segments and then you will have to create a matrix with countries and products to help with the analysis बेटा फिर आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करोगे जिसकी बेस पर आप ये देखोगे कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट जो है वो इस मार्केट के लिए जो है वो सूटेबल है then बेटा these are the target market strategy options for you. So better these are the target marketing strategy options, and you will have to pick one or more than one target marketing strategy in order to serve the target market people. Number one is the standardized global marketing or undifferentiated target marketing strategy. The first target marketing strategy that you can adopt for your target market customers that is your standardized global marketing or undifferentiated target marketing strategy. In standardized or undifferentiated target marketing strategy, company develops the single marketing mix for the whole target market and serve the customer accordingly. So इसमें स्टैंडर्डाइज ग्लोबल मार्केटिंग या अनडिफरेंशिएटेड टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कंपनी एक ही तरह की प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती है इन द अटायर रीजन इन विच दे आर ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज. So they use a mass marketing on a global scale. They standardize their marketing mix means के standardize कर देती है एक ही तरह की प्रोडक्ट एक ही तरह की प्राइसिंग प्लेसमेंट और जो है वो प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज करती है. ज़्यादातर हमारी जो ग्लोबल ब्रांड्स होती हैं या ग्लोबल मार्केटिंग फंड होती हैं वो इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं. मिनिमम प्रोडक्ट एडेप्टेशन बेटा प्रोडक्ट एडेप्टेशन जो है वो मिनिमम होती है. इसमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज की जाती है इसको प्रोडक्ट जो है वो इंटेंसिवली हर आउटलेट्स पे अवेलेबल होती है. आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम होती है और इसी तरह आपकी इट विल लोअर विद योर कम्युनिकेशन कॉस्ट एज वेल. तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो आपकी स्टैंडर्डाइज ग्लोबल मार्केटिंग और अनडिफरेंशिएटेड टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. सेकंड स्ट्रेटजी आपकी बेटा हुआ है हमें कंसंट्रेटेड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. In concentrated global marketing strategy, company divides its global market into different units and then concentrate on one or more than one units. In concentrated global marketing strategy, company divides its market into different units and then concentrate on one or more than one units. इसमें हम बेटा ज़्यादातर निश मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं. इसके छोटी छोटी मार्केट्स डेवलप करते हैं मीन्स के जहाँ जो है वो कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को रन कर रही होती है. ज़्यादातर निश मार्केटिंग जो है वो जो स्मॉल कंपनीज हैं जिनका ज़्यादा बजट्स नहीं है जिनके पास वो ज़्यादातर इसको जो है वो इस्तेमाल करती है और जो है वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाती है. इसमें सिंगल सेगमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केट को जो है वो टारगेट किया जाता है. जिसके कंपनी लुक फॉर ग्लोबल डेप्थ रादर देन नेशनल ब्रेथ बेटा. ग्लोबल डेप्थ की बात करती है कि ग्लोबली जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें ना कि आप अपने जो है वो नेशनल जो है वो ब्रेथ की जो है वो फोकस करें. एग्जाम्पल इसमें हो सकता है चैनल आपके जो है वो इसके बाद एस्ट लॉगर है बेटा ये दो आप इसके अमेरिकन कंपनी में आपको या पाकिस्तानी कंपनी की एग्जाम्पल दे सकते हो जिसने कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया. कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी में बेटा पहले ही मैं आपको जो है वो गोरमे की एग्जाम्पल दूंगा. गोरमे जो है वो इसने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च की थी लाहौर में. इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पंजाब में फिर पूरे पाकिस्तान में लेकर आया. इसी तरह KNN एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी इसके हेल्थ एंड सेफ्टी फूड की चेन है.
इसने सबसे पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट में अपनी गुडविल बनाई थी, फिर इसने अपने नेबरिंग कंट्रीज में जो है वो बनाना शुरू कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो थोड़ी चेंज जो है वो स्टैब्लिश करना शुरू कर दी। इसके बाद बेटा थर्ड स्ट्रेटजी है वो हमारी डिफरेंशिएटेड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। डिफरेंशिएटेड ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज टोटली अपोजिट टू द अनडिफरेंशिएटेड global marketing strategy. And differentiated global marketing strategy will furtherly divides our target market into different units and then develop the separate marketing mix for each unit. So in differentiated global marketing strategy, uh, company furtherly divides its market into different units and then concentrate on one or more than one units. So in a differentiated global marketing strategy, company use multi-segment targeting and they develops the different segments. They divide the market into different segments and develop the separate marketing mix for each segment. इस केस में वो फर्दर डिवाइड करेगी मार्केट को डिफरेंट यूनिट्स में और फिर हर यूनिट के लिए सेपरेट मार्केटिंग मिक्स जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसमें टू और मोर जो आपके डिस्टेंट मार्केट्स हैं उनको जो है वो कवर करती है कंपनीज। आपका मार्केट कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होता है। एग्जाम्पल आपकी प्रॉक्टर एंड गैम्बल मार्केट ओल्ड स्पाइस एंड हर्बो बॉस फॉर द मेंस बेटा। इसमें पीएनजी ने जो है वो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए दो जो है वो ब्रांड्स अपनी जो इसके ओल्ड स्पाइस जो है बेटा ये बहुत ही फेमस जो है वो इसके आपका इनका फ्रेगनेंट परफ्यूम है। और हर्बो बॉस फॉर द मैन बेटा ओल्ड स्पाइस फॉर द फीमेल्स एंड हर्बो बॉस फॉर द मैन जो है ना ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसने ऑफर किया है फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स। थर्ड स्ट्रेटजी बेटा वो आपकी पोजिशनिंग है। पोजिशनिंग मैंने आपसे जैसे पहले कहा था इट इज़ द प्रोसेस ऑफ developing a strong image, perception, or beliefs about the company's products in the target markets. It refers to locating a brand's in consumers' mind over and adjust competitors in terms of attributes and benefits that a brand does and does not offer. इसमें बेटा चार चीज़ें आप मद्दे रखोगे। पहला आपके एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स, दूसरा आपकी क्वालिटी एंड द प्राइस, थर्ड इज यूज और यूज़र। आप मीन्स के यूज़ करोगे मीन्स के एक या यूज़र होंगे एंड देन चौथी चीज़ जो है वो आप कंपटीशन है। पोजीशन के लिए बेटा जैसे आपने पहले बताया पहली चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट। तीन चीज़ें बेटा आपने एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। पहला इकोनॉमी है, दूसरा रिलायबिलिटी और तीसरा जो है ड्यूरेबिलिटी है। BMW बेटा अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन्स और वीजा इट्स एवरीवेयर ही वांट्स फॉरेन कंज्यूमर कल्चर पोजीशनिंग फोकस ऑन इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स बेटा। इकोनॉमी है बेटा, इकोनॉमी में डेफिनेटली आपने देखना है कि आपकी जो है वो बचत। रिलायबिलिटी जो है वो डेफिनेटली के रिलायबल है या नहीं है। ड्यूरेबिलिटी का ताल्लुक है वो लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस से है। सेकंड जो चीज़ है बेटा क्वालिटी एंड प्राइस है। इसमें नॉर्मली कहा जाता है हाई प्राइस प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी परसीव किया जाता है। तो सिमिलरली इसने कहा कि क्वांटिटी फ्रॉम हाई प्राइस हाई क्वालिटी हाई प्राइस टू गुड वैल्यू बेटा। नॉर्मली हमारे अज्यूम किया जाता है जो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी हाई क्वालिटी भी होती है। इसमें बेटा उन्होंने कहा जी कि स्टेला आस्टो आस्टोस्फेयर जो है वो इंश्योरिंग द एक्सपेंसिव। इसके अलावा उसने कहा जी FCCP ग्रॉसरी जो है वो गूस है जी आपका ग्रे गोज है बेटा फ्रांस में। कैटल वन द नेदरलैंड्स। ये बेटा बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो कि क्वालिटी और प्राइस के हवाले से अपनी पोजीशनिंग कायम कर रही है। इसके अलावा हमारे बेटा रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में या इवन ब्रांड्स भी कुछ हैं जो कि क्वालिटी प्राइस ट्रेड ऑफ पर जो है वो अपनी जो है वो पोजीशनिंग कायम कर रही होती है। इसके बाद बेटा यूज और यूज़र दिस एसोसिएट विद ब्रांड विद द यूज और क्लास ऑफ यूजर्स बेटा। तो यूज़र और क्लास ऑफ यूजर्स में बेटा फ़र्क होता है। यूज़र एक बंदा होता है, क्लास ऑफ यूजर्स बेटा मल्टीपल पीपल्स होते हैं। उसके बाद आप कंपटीशन देखोगे बेटा। आपकी कंपटीशन देख आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सॉरी रेफरेंस टू योर कंपटीशन। इम्प्लिसिट कंपटीशन होता है बेटा आपका डायरेक्ट कंपटीशन और एक्सप्लिसिट कंपटीशन जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है।
ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आप मद्देनजर रखेंगे। देन ये आपकी बेटा जो पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज हैं दो के, आप जो है वो अपने कीप इनटू योर कंसिडरेशन। पहली आपकी ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर पोजिशनिंग है, दूसरी आपकी फॉरेन कंज्यूमर कल्चर पोजिशनिंग है, और थर्ड आपकी लोकल कंज्यूमर कल्चर पोजिशनिंग है। जहाँ बेटा आपकी ग्लोबल कल्चर पोजिशनिंग है, इट आइडेंटिफाइज द ब्रांड एज अ symbol of particular global culture or segments। इसमें नॉर्मली हाई टच एंड हाई टच प्रोडक्ट्स को जो है वो जो है वो दिया जाता है। फॉरेन कंज्यूमर कल्चर जो है वो इसके बरक्स, इसमें आप जो है वो, इसके बाद बेटा आपका सेकंड आ जाती है ग्लोबल पोजिशनिंग। दिस इज फॉरेन कंज्यूमर कल्चर पोजिशनिंग। दिस बेसिकली associates the brand's user occasions or product origin with the foreign country or culture. Similar third strategy is local consumer culture positioning strategy. It identifies with local culture meanings consumed by the local people, locally produced for local people, used frequently for food, personal and household neighbors. So uh, these were some of the positioning strategies that companies normally use for positioning in the global market. So that's what that is all about today's discussion. In today's session, I have broadly explained the three strategies: segmentation, target marketing, and positioning strategy. Similarly, same request. Uh, Please try to listen and understand the lecture ahead of your scheduled time, and try to prepare your questions, and at the time of your lecture you are supposed to participate in the class discussion, and as well as please observe the guidelines of the assignment submissions, as well as don't try to copy paste from the web sources or from the assignment of your fellows. So I have strong reservations with respect to your assignments quality. So so far I'm not satisfied from the contents and the quality of your assignments. Please try to put your own thoughts rather than just copy pasting from the fellows or from the web material. अपना घर वालों में ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।